आंसर ठीक नहीं बताएगा तो वो गेम से आउट हो गया। तो बच्चा सिर्फ गेम खेलने के चक्कर में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएगा। ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। करना है तो ये हर एक क्लास के लिए हमने डिफरेंट तरह की लूडो बनाई है। छोटी क्लास के लिए हमने ऐसी लूडो और एक और हमने वहाँ पे लूडो बनाई है जो बिल्कुल छोटी क्लास के लिए। डिफरेंट शेप्स हैं इनके, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में बताया जो कि ब्लैक बोर्ड पे उनको डल और बोरिंग लगता है। यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स दिखा के उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है क्योंकि उसको लगता है कि मिकी माउस उनके लिए एक बहुत फेवरेट कार्टून है। ग्रांट तो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, फंडिंग आई थी कि मैच पार्क बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है ये फिर हम सब टीचर्स ने डिसाइड कराया। हाँ जी, ये हमने सोचा कि खाली एक ये मॉडल बना देना अपने आप में एनफ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा करें कि जहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग। ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एक्स एक्सिस है, वो वर्टिकल है तो वो वाई एक्सिस है। इसमें पूरी नंबर लाइन भी शो हो जाती है कि जीरो से लेफ्ट साइड में जो इधर है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, उधर पॉजिटिव नंबर्स हैं। आप 3 बजाने के बाद एंगल कितना बना, ऑब्ट्यूस एंगल 90 का एंगल बना। आपने अगर थोड़ा और इसको हिला दिया तो ये एक्यूट एंगल बन गया जो 90 से छोटा है। ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया, लीनियर पेयर, सारे एंगल का कॉन्सेप्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੂਰੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਿਸਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ, ਮੈਥ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਮਲੇ, ਬੂਟੇ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੇਡੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਪਲੇ ਐਂਡ ਲਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਵਰਲਡ ਕਮ ਪਲੇ ਐਂਡ ਲਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਥ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੇਡ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਲੁੱਡੋ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੈਬ ਹੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? किताबां ते बोर्ड ते नहीं तुसी पढ़ाते? नहीं, किताब और बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पर वहाँ पे बढ़ाने के बाद जब हम पार्क में लाते हैं और उन्हीं नंबर्स के साथ इनको गेम्स खिलवाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, छोटी सी गेम। मैं ये पूछना चाहता सी भी जेडे तुसी जोड़ रहे हो, ये एक छोटी सी गेम है, मेक मी वन।
इसमें हमने ब्लॉक्स तैयार किए जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे नर्सरी में बच्चों को हम ब्लॉक्स देते थे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी ब्लॉक्स प्रोवाइड किए, लेकिन इन ब्लॉक्स में हमने नंबर्स लिखे और सिम्बल्स लिखे। तो यहाँ पे बच्चा ये ऐड करके 1 बना रहा है, जैसे 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 1 बन गया। ऐसे ही वो 2 - 1 भी 1 बना सकता है। तो उसके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो दिमाग लगाएगा कि मैं कैसे 1 बनाऊँ। तो ये एक अनदर ऑप्शन आ जाएगी कि आंसर 1 आ गया। तो ऐसे ही वो नंबर से साथ खेल खेल के सीख लेगा मैथमेटिक्स को ऑपरेट करना। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। और दूसरी बात, जब हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो उसको पता है कि जब मैंने पार्क में जाके खेलना है तो वहाँ पे जब मुझे ब्लॉक्स मिलेंगे तो मैं तो हार जाऊंगा, जब हमारी टीम जीतेगी नहीं। तो वो वहाँ पे बहुत ध्यान से सुनता है कि मुझे पार्क में जाके जब खेलना है तो मुझे ये आना चाहिए। तो वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश भी करता है ब्लैक बोर्ड। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ये नहीं, सारा डिस्प्ले ही है। और ये गेम हमारे पास है। अगर आप इधर डाइस को दिखाएं, लूडो को सर, तो ये हमारी ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲੂਡੋ टाइप ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ये देखने में एक लूडो है पर ये पूरी की पूरी मैथमेटिकल है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो लूडो है इसके ऊपर हमने इक्वेशंस लिखी हैं। ये बच्चा इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो अब इसका ये आंसर बताएगा। व्हाट इज द आंसर बेटा? 4। तो इट इज 4 आंसर आ गया। तो ये 4 मूवमेंट में डालेगा। तो जो आंसर ठीक नहीं बताएगा तो वो गेम से आउट हो गया। तो बच्चा सिर्फ गेम खेलने के चक्कर में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ मैथमेटिक्स ਦਾ फंडा ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। करना है। तो ये हर एक क्लास के लिए हमने डिफरेंट तरह की लूडो बनाई है। छोटी क्लास के लिए हमने ऐसी लूडो और एक और हमने वहाँ पे लूडो बनाई है जो बिल्कुल छोटी क्लास के लिए। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? छोटी क्लास से 3rd 4th क्लास से लेके आप 10th क्लास तक के सारे गेम्स के लिए हमने अलग अलग तरह की लूडो बनाई है। और पार्टिसिपेट सारी क्लास ही कर लेती है या अलग-अलग टीमां बना लेने को? टीम बना लेते हैं 4-4 का ग्रुप बना के कि कौन सी टीम फर्स्ट आई, कौन सी टीम नहीं। तो ये तो इंडिविजुअल गेम भी है, मतलब कि 2 बच्चे जैसे लूडो में खेलते हैं वैसे 2 बच्चे भी खेल सकते हैं और मैथ्स के हिसाब से खेलते हैं ये। ओके ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਮ एक ही चीज़ ਜਿਹੜੇ बॉक्सेस ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ शेप्स ने ਹੈਗੀਆਂ? हाँ, डिफरेंट शेप्स हैं। इनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में बताया जो कि ब्लैक बोर्ड पे उनको डल और बोरिंग लगता है। यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स दिखा के उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है क्योंकि उसको लगता है कि मिकी माउस उनके लिए एक बहुत फेवरेट कार्टून है। तो फिर वो देख रहे हैं कि मिकी माउस क्या पढ़ा रहा है, तो फिर वो इसलिए इसको रीड आउट करता है। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ कि इस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ समझ लगे? ग्रांट तो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, फंडिंग आई थी कि मैथ्स पार्क बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है ये फिर हम सब टीचर्स ने डिसाइड क्रिएट कराया? हाँ जी, ये हमने सोचा कि खाली एक ये मॉडल बना देना अपने आप में एनफ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा करें कि जहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग हो, क्योंकि आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप देख रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, क्रिएटिव राइटिंग की बात हो रही है, क्रिएटिव लर्निंग की बात हो रही है। तो हमने यहाँ क्रिएटिविटी जगाने की कोशिश ਆਮ की। ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਚਾਊਗਾ, ਮੈਡਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ, ਫੇਲ ਹੋਇਆ पास होया। ये बात तो हमें बहुत ज़्यादा चुभती है कि अगर आप कोई आके कहता है कि आपका सरकारी स्कूल है, पर आप देख लें कि मुझे लगता है ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? हाँ जी, ये हमारे मैथ्स टीचर्स ने सबने टीम बनाई एंड देन हमने इकट्ठे बैठ के डिसाइड किया कि कौन कौन सी ऐसी गेम्स हम पार्क में बना सकते हैं जो बच्चा छोटे लेवल से लेके बड़ी क्लास तक के लेवल का समझे। और क्लास पढ़ा देने हो जी इस ਚ ਤੁਸੀਂ? 3rd क्लास से लेके हम 10th क्लास तक सारी क्लासेस का है। 10th क्लास तक ਆਉਂਦਾ ਇਹ आप वर्किंग? आगे चल के देखिए तो 10th क्लास के लिए भी बहुत सारी गेम्स हैं। ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? हाँ जी, रिजल्ट तो हमारा इम्प्रूव पहले से ही आ रहा था 100%। पर इससे ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे वो भी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये मैम आपको एक और गेम दिखा रही है। ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ ਮੈਮ ਮੈਥ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी सर। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ग्राफ मैथ्स के लिए ये ग्राफ है, ग्राफ वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है जिसमें एक्सिस हैं। हमने 10th तक, वैसे तो इसमें 3 होती हैं एक्सिस, बट 10th तक 2 ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए हमने इसमें 2 ही बनाई है। ओके, जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈਸਨਸ ने उस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ? ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एक्स एक्सिस है, वो वर्टिकल है तो वो वाई एक्सिस है। इसमें पूरी नंबर लाइन भी शो हो जाती है कि 0 से लेफ्ट साइड में जो इधर है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, उधर पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਬਰਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ। जैसे हमारे पास हमने स्लिप्स बनाई हुई हैं, इन पर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो बच्चों को क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि कार्टेशियन प्लेन है, वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है। तो हर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास ये है कि बच्चों को दे देते कि बेटा आप अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो जाओ। जैसे कम से ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट तो बढ़ा है बच्चों का, ये तो है, इंटरेस्ट तो बढ़ा है। तो वो क्या हम क्या करते हैं कि इसमें जितने मर्जी बच्चे आप ले सकते हो, तो हम बच्चों को एक एक मार देते हैं कि बेटा आप अपने जाके पॉइंट पर खड़े हो जाओ। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को पता लग जाता है कि मेरा पॉइंट जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का -2 है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस का -1 है। तो जो ये पॉइंट हुआ ये -2 -1 है, क्योंकि ये ऐसे, तो बच्चे को लोकेशन पता लगती है। आगे ग्राफ के लिए कि उसके बाद और एक्सटेंड करें तो बड़ी क्लासेस के लिए थोड़ा 10, 9, 10th के लिए ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्योंकि बच्चा अपने आप ही सीखता है। क्या होता है कि नहीं तो बच्चे के लिए ना ग्राफ ये चीज़ें ना एक होती थी कहाँ काम आएगा, उससे ये पता लगता है उनको कि कहाँ काम आता है एक्चुअली कि ये ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਫालतू ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ है, हमें क्या करना है कि चलो थोड़ा ये है कि हमारे जो अपना अलजेब्रा वगैरह है उसको तो बच्चे ही सोचते थे ये तो काम की चीज़ ही नहीं है, ऐसे भी सोचा खैर ये चीज ऐसे ही सोचते थे। हाँ जी, और ज्योमेट्री को तो ये सोचते थे कि बहुत ही हार्ड है, जब उनको पल्ले नहीं पैनी है किਤੇ समझ नहीं हाँ जी हाँ जी। जैसे अगर हम छोटी सी बात करें, कोई खेत है उसकी आपने फेंस बाड़ लगानी है तो बच्चों को बताते हैं वो पेरीमीटर होता है, हम इसीलिए पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। अगर हमने ये ट्रायंगल का खेत बनाया हुआ है, सपोज हमारा हमने नया शेप बनाना है और इसी फेंसिंग से इसी बाड़ से हमने नया खेत बना लिया तो उसका पेरीमीटर और पुराने वाले का पेरीमीटर सेम है। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ। खेतों में जो हम बाड़ लगाते हैं उसमें पेरीमीटर यूज होता है, तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है। और जो खेत उग रहा है, सामान उग रहा है वहाँ वो एरिया है, तो यहाँ पे ये हम ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके डेली लाइफ के क्लियर बने हैं। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲੈਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ डेली लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो उससे बच्चा अच्छे से हैंडल कर सकता है, इनसे वो क्लियर हो जाता है उन्हें। हाँ जी। अदरवाइज पहले उन्हें ये लगता था कि मैथ्स है, सम सोल्व करना है, फॉर्मूला यूज करना है, पहले उन्हें यही लगता था। ये ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ। हमारा आसान हो गया है, बच्चे खेल रहे हैं क्लास में, ना उन्हें बोरिंग लगता है तो इंटरेस्ट से खेलते हैं और एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ਬੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਛਾ ਡੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ये डी नहीं है सर, ये आपके लिए घड़ी बनाई है और इस घड़ी में जैसे छोटे बच्चे अगर टाइम बनाते हैं कि 3 बजा दिए, आप 3 बजाने के बाद एंगल कितना बना, ऑब्ट्यूस एंगल 90 का एंगल बना, आपने अगर थोड़ा और इसको हिला दिया तो ये एक्यूट एंगल बन गया जो 90 से छोटा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया, लीनियर पेयर, सारे एंगल का कॉन्सेप्ट कि ये वर्टेक्स है, ये आर्म्स है ना, ये एडजस्टेंट आर्म है, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਘੜੀ देखनी नहीं आती वो भी नाल नाल सीख जाते हाँ जी हाँ जी, टाइम बजाना सिखाते हैं ना, 3 बजाओ घड़ी में, तो वो 3 बजाएगा, फिर उसके बाद उसमें एंगल कितना बना ये भी बताएगा। और यहाँ पर हमने बड़ी क्लास का भी कॉन्सेप्ट रखा है, ये हमने एक डी बनाई है, ये रोटेट हो रही है, देखो हम ये जो एंगल रस्सियों ने बनाया ये एंगल नाप रहे हैं, तो ये 0 से लेके उसने नाप लिया 130 का एंगल है। ये वाला जो एंगल होता है ना सेंटर पे, वहाँ के एंगल से डबल होता है, ये एक थ्योरम है हमारी 10th क्लास की। तो वो प्रैक्टिकली यहाँ पे रोटेट करके देख रहा है, उसने जब ये वाला एंगल देखो ये घुमाने वाला बना है, मेजर किया तो वो 65 है, ये 130 है, तो इसका मतलब वो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हाँ देखो हम सिर्फ रट्टे नहीं लगवा रहे हैं, ये एक्चुअल में ऐसा ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। जैसे हम कहते हैं ना पिक्चर हमें याद हो जाती है, तो ये हम पिक्चर याद करवाने के लिए, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ खुद अपने हाथ से करके देख रहा है ना। इवन के जब हमने पढ़ी है ना थ्योरम्स तो ये कहते थे कि थ्योरम्स क्या है, सिर्फ एक रिटन ऐसे सोचते थे कि यही है, ये नहीं पता चलता था कि ये कहाँ एप्लीकेबल और इसका मतलब क्या है, बस रट्टा लगाते थे थ्योरम है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਖੈਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ सब बड़े बच्चे छोटे बच्चे ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ हाँ जी हाँ जी, जिस भी क्लास का बच्चा आ जाए, ये देखने में हमने इसको मेले का रूप दिया है कि बच्चे को ये लगे कि हम मेला में खेलने जा रहे हैं।
तो ये एक रिंग गेम है जिसमें हमने बच्चे को कहा कि आप रिंग थ्रो करेंगे, किसी भी नंबर पे आपका रिंग आ जाएगा, चलो खड़े होके डाल दो बेटा। तो आपका जिस भी नंबर पे आएगा उस आपको नंबर के बारे में 3 बातें बतानी है जो भी आपको पता है। जैसे ये 19 आया, 19 के बारे में कुछ बताओ आप क्या क्या देखते हो आप? ये इवन और ऑड नंबर है एक, और ये मैम टू डिजिट नंबर है, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ प्राइम नंबर। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਰੈक्ट ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टीम के साथ गेम खिला सकते हैं। जैसे 4-4 की टीम बना दी तो फिर हर एक बच्चा अपनी टीम को इंस्पायर करेगा कि नहीं तुम्हें अगली बार सीख के आना है। तो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होंगी बच्चे में, और पीयर ग्रुप की जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜੇ 2-2 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। और दूसरी बात, जल्दी सीखते हैं। बच्चे जब आपस में खेलते बोलते हैं ना तो वो जल्दी सीखते हैं, टीचर की बजाय आपस में पेयर ग्रुप्स जल्दी सीखते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम उन्हें ये लगता है कि वैसे भी अगर रिसेस टाइम है ये वो तो घूमते हैं ना, तो देखते हैं अच्छा ये मेरा पिछली बार ये होता है, ये होता है, तो वो जल्दी सीख जाते हैं ऐसे। मैथ ਦੀ ਲੈਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ हमने ये रखा है कि अगर आप 3 थ्रोज में करेक्ट आंसर दोगे तो वहाँ पे मैंने लिखा है कि आपके लिए प्राइज़ है। हम यहाँ प्राइज़ भी रख देते हैं क्योंकि प्राइज़ में आप चाहे पेंसिल रखें या पेन रखें, बच्चे के लिए वो प्राइज़ ही रहेगा। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ तो ਗਿਫਟ ਦੀ हम ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ जब गेम्स पीरियड होता है तो हम यहाँ पे एक छोटा छोटा प्राइज़ ज़रूर रखते हैं ताकि बच्चे को एक इंसेंटिव मिलता रहे कि मुझे प्राइज़ लेके जाना है आज। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਲ? ये एक है, जब ये एक सर्कल है, जब हम इस सर्कल को घुमा देते हैं, जोर से घुमाते हैं तो वो एक बॉल की दिखाई दे रहा है। तो हम ये बताने की कोशिश करें कि 2 डायमेंशनल चीज़ों से हम 3 डायमेंशनल पे जाते हैं, तो सिर्फ घुमाना एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बॉल जो है सर्कल से ही बनी है, लेकिन सर्कल घूमने से एक बॉल की शेप आती है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ, ਸਾਰੀ। बच्चे को कि 2D से आप 3D में कैसे जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। ऐसे सेमी सर्कल को घुमाएंगे तो हमारे पास हेमिस्फीयर बन जाता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस ट्राइंगल को थोड़ा सा भी कीजिए, इसको अगर घुमाएंगे तो हम ये बताते हैं कि आपका सॉफ्टी कौन बन रहा है। तो फिर बच्चे को पता चलता है कि जो हमारा सॉफ्टी का कौन है ਮਾਇਨੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ क्या, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ वो एक 3D शेप है जो कि हमारी ट्राइंगल से बनी है। इसको घुमाएंगे तो हमारा एक सिलेंडर बनता है। तो जो वो पेप्सी के कैन पीते रहते हैं बच्चे, तो उन्हें पता चलेगा कि ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। क्योंकि मुझे याद है जब हम भी मैथ्स पढ़ते थे तो हम छोटे होते पूछते थे अरे इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें कहाँ काम आने वाला है ना। ये आम तो तौर वो पे सवाल दिमाग है। में हमने रखा कि हमारे बच्चे के भी दिमाग में ये सब आता होगा, तो हमने सोचा कि वही चीज़ें हम पार्क में बनाएं ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मैथ्स जो है बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। और डेली लाइफ में ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को दूर करने की कोशिश करी है। और इसके आगे ये हमने ये जो बनाए हैं ज़मीन पे, यहाँ घास अभी थोड़ा सा गर्मी करके फूल नहीं हो गए, अदरवाइज फ्लावर उगा दो। तो एक ये क्वेश्चन कभी 8th क्लास में आता था कि एक पार्क है जिसके सेंटर में रास्ता बना हुआ है, बेटा उस रास्ते का एरिया निकाल लो। ये क्वेश्चन फेमस मुझे लगता है कि जिसको मैथ्स नहीं अच्छा और लगता, उसके लिए रट्टा लगाते थे बच्चे को ये नहीं पता चलता था कि जो ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लास्ट में माइनस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यहाँ से देख के बच्चे को पता चल जाता है अच्छा ये इस वाले रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इसलिए वो माइनस हो रहा है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। तो इसको नापने के लिए हमने रस्सी रखी हुई है उधर, और वो रस्सी के नापने के लिए उधर स्केल भी बनाया है। बच्चा स्केल से नापेगा और फिर इसको चौड़ाई नापेगा, इसकी लेंथ ब्रेथ सब निकालेगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी वो इसको सब मेजर करना। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ हाँ जी, ਮਤਲਬ हाँ जी, ਸਕੂਲ ਦੇ देखो सब बेस क्लियर हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में वो कुछ भी कर सकता है। और स्पेशली अगर मैथ्स का बेस स्ट्रांग हो तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि देखो कोई भी कंपटीशन में आप बैठते हो तो आपको बेसिक 10th क्लास तक का मैथ्स आना चाहिए। तो उसके हमने बेसिक फंडा यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। जब तक किसी चीज़ की वैल्यू ना हो हम सीखते नहीं उसको, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਲਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ हाँ ये भी अगर मैं घर में एक मेरा गार्डन है और मुझे 4 तरफ बाउंड्री बनानी है तो बच्चे से पूछो कितना पेंट लेके आना है, तो देखो एक जो
पेंटर होता है वो तो बता देगा कि इतना ले आओ, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी नहीं बता, नहीं बता सकता, सही गल है, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। आइडिया ही नहीं होता कि पेंट निकालना कैसे। तो हम यहीं पे उनको सिखा के भेजते हैं, बेटा ये जो पेंट लगा कितना लगा होगा, पहले क्या निकालना, आपको एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, क्या चीज़ निकालनी है जो आप इसका पेंट निकाल सको, फिर पेंट पे कितना खर्चा आएगा, उसकी कॉस्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਫੇਮਸ Question ਨੇ ਜੇ ਆਤੇ ਕਹੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਇਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਠੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ हम ਦਿੰਦੇ। बच्चों को यही बताते हैं कि बेटा बड़े होकर बड़ा आदमी अगर बन भी जाएगा तो कम से कम कोई तुम्हें ठगेगा नहीं, ये रहा तुम्हारा हिसाब किताब। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। हमारी ना दादियाँ माएँ बता देती थी साड़ी पे बॉर्डर बना रहे हैं तो हमें इसके लिए इतने सितारे चाहिए, इतना ये इतनी लंबी लेस चाहिए, जबकि हम लोग काउंट करके तो शायद सोचते पहले कि ये करें। अब तो चलो मैथ्स के हैं तो थोड़ा हम तो सोच सकते हैं, अदरवाइज अगर वैसे किसी से पूछो नहीं पता चलता था। जबकि दादियाँ अनपढ़ होती थी, वो बता देती थी 5 मीटर की साड़ी इतनी चाहिए इसके लिए, तो वो चीज़ें बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਬੱਚਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। क्रिएट होना सबसे बड़ी बात है, एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर बच्चा अपने आप ही लाइन पे चल पड़ता है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਖੈਰ ਉਹ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਥ ਵਰਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਏ, ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਲੈਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ? सर ये सारी क्लासेस के लिए ही है, बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए साइंस में, और उनको डे टू डे लाइफ के साथ साइंस को जोड़ने के लिए है। और बच्चे जब ये चीज़ों को देखते हैं तो वो और अच्छे से उसको लर्न कर पाते हैं, और उनके माइंड में भी रहेगा कि हमने देखा हुआ है, तो वो चीज़ें उनके माइंड में ज़्यादा। ਮੋਡਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫੇਮਸ ਮੋਡਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਆ हाँ ਬੁੱਕਸ जी, ਦੇ ਵਿੱਚ। जो हमारे मतलब मैक्सिमम देख रहे हैं, छोटी क्लास से लेके बड़ी 10th तक हमारे यूज़ में आ रहे हैं, आगे भी जो उन्हें हेल्प करेंगे उनको हमने मेनली यहाँ पे डेवलप किया हुआ है और बनाया है। जैसे ये है हमारी न्यूटन डिस्क है सबसे पहली, जिसके अंदर हमने बच्चों को ये बताना है कि जो वाइट लाइट है दैट इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, और साथ जो ये डिफरेंट कलर्स है ये रेनबो के हमारे रंग है, जो हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म विबग्योर से लर्न करवा देते हैं कि वॉयलेट इंडिगो है, इसके अंदर ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 है। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੀ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੇ हाँ, ਨੇ ਰੰਗ। क्योंकि ये जब हम इसे बहुत फास्ट रोटेट करते हैं या विद द हेल्प ऑफ मोटर लगी हो पीछे बहुत रोटेट करेगा फास्ट, तो हमें सिर्फ एक ही रंग दिखेगा, वो हमारा वाइट कलर दिखेगा। ਜੀ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। हाँ जी। ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੀ ये ਇਹ ਹੋਗੀ wave ਟੇਢੀ ਜਾਂ motion ਬਣਾਈ के ਇਸੇ लिए। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? सर ये वेव मोशन बताने के लिए है बच्चों को। वेव जो है वो डिस्टर्बेंस है विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पे दो टाइप की है हमारी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसी से हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वेव जो है हमारी इस फॉर्म में जा रही है क्रेस्ट और ट्रेफ के फॉर्म में, या फिर ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो ये यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में भी ये ट्रैवल ਤਾਂ होती है। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। हाँ जी, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है तो मूव करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर। फिर ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का है हमारा मॉडल। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl हम कहते हैं, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो नमक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अभी बच्चों को पता होना चाहिए कि केमिकली
जो है इसका हमने बताया ਕੁਛ हुआ है। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ हाँ ਬਣਦਾ जी, है? तो ये एक आयनिक कंपाउंड है जो 2 आयन केटायन और एनायंस के मिक्सचर से बनता है। सोडियम है इसके अंदर जो प्लस का चार्ज कैरी कर रहा है, और इसके अंदर क्लोरीन है जो नेगेटिव चार्ज है। ये जो कोने में आपको दिख रहे हैं रेड रेड रंग के, ये सारे हमारे क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज एनायंस है। और ये जो ब्लू कलर के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो है, ये सारे हमारे जो है वो सोडियम है। तो ये 2 चीज़ों से बन के बना हुआ है। आयनिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस का चार्ज है। सोडियम के पास जो एक्स्ट्रा प्लस का चार्ज है वो क्लोरीन को देता है, उसके पास कमी है। तो ये जब आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इसके बॉइलिंग और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ਮੈਮ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਂਜੀ, ਬਣਦਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ right, ਨਮਕ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ਾयद ਉਹਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ नहीं ਤੁਸੀਂ समझा और वो डेमो में भी, और बच्चे इस एनवायरनमेंट में खुश भी होते हैं आने के लिए ना। जैसे क्लासरूम की एक आपकी बोर जा कम हो जाता भी हाँ, बैठा बच्चा regular सारा teaching- जा रही हाँ जी, रेगुलर टीचिंग से थोड़ा हटके भी हो जाता है। और फिर हम इसको जैसे सैटरडेज वीकेंड्स पे कर देते हैं, वैसे डेमो करें तो बच्चे खुश भी होते हैं। और उन दिनों हमारी अटेंडेंस जैसे कम है तो हम रख दें कि सैटरडे को बेटा ये है, तो बच्चों की अटेंडेंस भी हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ां है। पूरियां देखो हाँ ਤੁਸੀਂ जी, 2 चीज़ें, इंटरेस्ट भी है। हाँ, तो ये बच्चे ਮੈਮ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ? मैम ने बताना। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ये बता ਤੇ देते हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਰॉकेट ਬਣਾਇਆ? हाँ जी, ये हमारा PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये इसरो का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, जिससे सैटेलाइट्स जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो हमारी जो है टेम्परेरी और परमानेंट ऑर्बिट्स के अंदर हम लोग लॉन्च कर देते हैं, वहाँ पे प्लेस करते हैं, जिनका डिफरेंट यूज़ है। मेट्रोलॉजी के अंदर है, वेदर जो प्रिडिक्शंस हो रही है उसके अंदर इसका यूज़ में आ जाता है। कम्युनिकेशन में आ रहा है, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न सिग्नल्स हो गए, रेडियो ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ सिग्नल्स। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। यस, वो बताने के लिए बच्चे भी, छोटे भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये पता होनी चाहिए। और इसरो हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसी का ही है। तो ये हम ज़्यादा अच्छे से बच्चों को इसके थ्रू बता सकते हैं। वही सेम चीज़ है कि इंटरेस्ट भी क्रिएट होता ਬੱਚਿਆਂ है। ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਗਨਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। और सिक्योरिटी पॉइंट से भी हमारे मिलिट्री वगैरह बाकी हमारे बॉर्डर फोर्सेस के लिए ये सारा जो है, ये सिग्नल्स जो दे रहा है, ये सारा काम उसी में कर रहा है। तो थोड़ा सा नॉलेज उसमें भी हम छोटे बच्चों को भी इसका दे देते हैं। बड़ों के लिए तो वैसे भी आपके आ ही जाते हैं टॉपिक में, चैप्टर्स के अंदर। ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ? हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा पूछते हैं सर, हम इंट्रो उन्हें भी दे देते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी, ऐसा नहीं कि टोटली हम उस टॉपिक को टच ही ना करें। फिर जैसे ये, हाँ जी, ये सन डायल है जो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जैसे टाइम के लिए होती थी, जब आप हमारे पास जो है क्लॉक्स वॉचेस वगैरह कुछ नहीं होता था। तो जब सन की डायरेक्शन से जो ये आपका पॉइंटर है, इसकी वो शैडो देख के बता देते हैं कि भी टाइम जो है वो आपका कितना है। ये जैसे इसके ऊपर टाइम मार्क किया हुआ है, तो ये टाइम इसमें से पता लग जाता है। तो ये पुराने टाइम से भी बच्चों को रिलेट करना है कि अब तो बेटा आपके पास डिजिटल वगैरह काफ़ी सारी आ गई है। हाँ, तो तब नहीं होती थी, तो ये सन डायल जो है इसी की हेल्प से वो यूज़ में लाते थे। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ हाँ, वही चीज़ है, सेम है। मार्क्स हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं, ये है कि कंसेप्ट जो है वो बच्चों के क्लियर होने चाहिए, और इससे इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है। प्लस वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छी उनको मिल रही है, जो कि हेल्प कर रही है, ऑब्वियसली हेल्प ही कर रही है ये बच्चों के लिए। छोटे से लेके बड़े तक ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसको इसी पर्टिकुलर क्लास के लिए बनाया। जनरल से टॉपिक्स है जिनसे हम बच्चों को रिलेट कर रहे हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਮੈਡਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬਾਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸਿੱਖਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਦਾ? ਫॉर एग्जांपल ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਡੋ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇੰਟੀਜਰ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੀਜਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਆਏਗਾ, ਗੇਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਕੱਟ ਆਫ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 11 12 ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਿਲकुल बिल्कुल जी, हाँ फील गुड फैक्टर आता है कि हाँ अच्छा है कि स्कूल अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट स्कूल है तो सारिया चीज़ें करके जो बच्चा एडमिशन करवाना था, पेरेंट्स बोलते कि अच्छी स्टडीज़ है तो खुद ਨੂੰ मान फील ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਉ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਨਿਓ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਉ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।